Today we are having one very nice and important informative session with the 6th JPSC topper, Ankita Rai. But let me say something about the Chanakya IAS Academy. Most of you are, though, very much known to it, but some of the new students are also joining to get the tricks and strategy planning from Ankita Rai. Chanakya IAS Academy, one of the pioneer coaching institute for civil services examination. And the man behind this Chanakya IAS Academy is Success Guru A.K. Misra sir. The most pride of us, as well as the proud part of the thing is Success Guru A.K. Misra sir was, even he is from Hazaribagh, that is the home state, Jharkhand. He is not only a managing director of Chanakya IAS Academy, he is a great motivator too. A person with a long vision, optimistic, and with a great achiever. He started out Chanakya IAS Academy in the year 1993 at New Delhi, which is our head office now. And with his leadership and the direction, today we are running around more than 22 centers across the country. Apart of that, the most interesting part is because he is from Jharkhand, you might have seen our India map, that Jharkhand is the only state where we are having 3 branches. Whereas in the other state, we are having only single branch. Just to promote the student of Jharkhand, to develop the student of Jharkhand, to bring the student of Jharkhand in the top list of civil services, he has opened up 3 branches. Ranchi, then the second is Hazaribagh, and the third is Dhanbad. All the 3 centers are commonly work as a one, that is Jharkhand Center. Success Guru A.K. Misra sir has given additional responsibility to his brother Vinay Misra sir, who is the Vice President of Chanakya IAS Academy, to have a close look and to personally monitor the 3 branches so that Jharkhand students can get all the facilities what Chanakya wants to provide under the leadership, direction, and strong motivation of Success Guru A.K. Misra sir. Jharkhand centers are also doing well, and to assist our Vice President Vinay Misra sir, we have another legend, Rima Misra ma'am, the General Manager of Chanakya IAS Academy. You must be knowing, and you will be proud to hear it out, that under their directions, under the strong motivation and guidelines, Chanakya IAS Academy has been able to provide more than 4,800 results since 1993 in the civil services field. Indian administrative officer used to be the dream, be it from the central level or be it from the state level. We are there to provide all the platforms. Chanakya IAS Academy, known for its commitment and excellency in education. Our managing director as well as great motivator, Success Guru A.K. Misra sir, has never compromised with the quality of education, with the standard of faculties, and the talent of the working persons. On the top priority, he has always kept the benefit of the students. He has always kept the facility which to be provided to the students so that they can come up to a successful candidate. With all this aspect from the Jharkhand, after being closely monitored by Vinay Misra sir and Rima Misra ma'am, today we are in a position
to provide good results. Jharkhand centers has given good result in UPSC as well as in JPSC also. Today, Ankita Rai, who is going to take up the session, is also from Jharkhand centers. If Chanakya IAS Academy would have not been in Jharkhand, then we would have not been able to get Ankita Rai, and this session would have not been possible. The 6th JPSC topper, and now he is posted in Ranchi in the post of Deputy Superintendent Police. Today, she will come on the screen. She will share her experience, strategies. Ankita Rai ma'am has already come up. Listen to her, whatever she is delivering. On behalf of her part, I will take some important questions which will be helpful for you. And at the end, we will give you the options. One by one, you will raise your hand. We will take up your queries. So I welcome Ankita Rai ma'am. It's very nice to see you virtually. Thank you so much. And I hope you are feeling better in comparatively. Yeah. So without wasting much of time, I would just stick to the points. कि basically देखिए इस एग्जाम में 6 पेपर्स होते हैं आपके. एक जनरल हिंदी इंग्लिश होता है which is 100 मार्क, and apparently शायद आप लोग के एडवर्टाइजमेंट में इसको क्वालिफाइंग नेचर का बताया गया है. So बहुत ज्यादा स्कोर करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. स्टिल एग्जाम देने से पहले एक बार क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा केयरफुली पढ़ लीजिएगा कि उसमें क्या क्या क्राइटेरिया मेंशन है, वेदर 33% का मेंशन है या नहीं है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आपका लैंग्वेज पेपर है. लैंग्वेज पेपर 150 मार्क्स का होता है. मैंने इंग्लिश जनरल इंग्लिश लिया था, उसके सिलेबस को एडहेयर करके सेक्शन बी पे ज्यादा फोकस किया था बिकॉज ए थोड़ा वास्ट था एंड मेरे टाइम पे उसके रिसोर्सेज कम थे. स्टिल गूगल करके रिसोर्सेज लिया था. सो ये तो चूंकि जनरल इंग्लिश मेरा ऑप्शन था, इस वजह से ये मेरे लिए पॉसिबल था. अदर देन दैट आप अपने जो भी आपके लैंग्वेज पेपर है उस पर फोकस करिए और उस पर स्कोर मैक्सिमाइज करने का कोशिश करिए बिकॉज दैट इज वन ऑफ द एरिया जहाँ पर आपका जो रीजनल स्पेसिफिक है, फॉर एग्जाम्पल संथाली हो गया, कोठा हो गया, इस यहाँ पे कई लोगों का पकड़ ग्रिप अच्छा है काफी ज्यादा. सो दैट विल हेल्प यू. सो फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट लैंग्वेज पेपर का अलग रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट आपके जो बाकी 4 पेपर्स हैं सारे का पैटर्न अलग तरीके का है. मेन फोकस है आपका एमसीक्यू पे जो कि 40 मार्कर है और उसके बाद जो आपको लॉन्ग आंसर टाइप ऐसी टाइप क्वेश्चन लिखना है, 40 मार्कर ईच क्वेश्चन है. तो देखिए स्ट्रैटेजी कुछ खास नहीं है, सिंपल है. मेरी जो रूट थी कि 3 घंटे का पेपर है, मैंने उसको डिवाइड किया 160 और 20 मार्क्स में और उसमें आपको मैक्सिमम 10 से 15 मिनट एमसीक्यू को हैंडल करने के लिए देना है. एमसीक्यू में इससे ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए और उसके साथ ही आप इसमें क्वेश्चन सिलेक्शन का भी टाइम दे सकते हैं. उसके अलावा जो आपके पास बचेंगे 160 मिनट, उसमें आपको 4 क्वेश्चन लिखने हैं. सो प्लीज डिवाइड इट अकॉर्डिंगली कि 40 मिनट्स पर क्वेश्चन. उससे ज्यादा आप ग्रेस में 5 मिनट रख सकते हैं आफ्टर 15 मिनट एमसीक्यू. तो 40 मिनट घड़ी देख करके आप लिखिए. चूंकि पेपर 3, 4, 5 जो आपके हैं उसमें कोई वर्ड लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है. ये आप लोग एग्जाम में जाने से पहले भी इंस्ट्रक्शन में देख लीजिए कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा कि उसमें वर्ड लिमिट है या नहीं है. अगर नहीं है तो ऐसे फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करिएगा. ऐसे फॉर्मेट में आपका आंसर का स्ट्रक्चर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इंट्रो, अ बॉडी एंड अ कंक्लूजन. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट आपको जितने आपके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उनको आपको अंडरलाइन करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए. ट्रीटीज वगैरह कुछ भी हैं, झारखंड स्पेसिफिक अगर कुछ हो तो झारखंड स्पेसिफिक हेडिंग दे करके आप नीचे कोट कर सकते हैं. एंड उसके अलावा पैटर्न वे में इंट्रो में क्वेश्चन के बारे में आप शुरू करिए, क्या है क्वेश्चन. बीच में जो उसका मेजर पोर्शन है उसको एड्रेस करिए
एंड लास्ट में आपको कुछ लगता है सजेशन वे फॉरवर्ड टाइप से 4-5 पेज को अच्छे तरीके से, फॉर एग्जाम्पल ऐसा लगना चाहिए कि इट इज अ 40 मार्क का आंसर जो आप लिख रहे हैं। डोंट बी इन द वे ऑफ बीटिंग अराउंड द बुश, एक ही चीज को बार बार लिख रहे हैं, डिफरेंट चीजों को कोट करिए, सब हेडिंग दीजिए, सब हेडिंग का यूज करिएगा। और चूंकि वर्ड लिमिट नहीं है तो टाइम मैनेजमेंट है इसका स्ट्रैटेजी बेसिकली। और आप कुछ नए रिपोर्ट्स कोट कर सकते हैं, स्टेटिस्टिक्स कोट कर सकते हैं, और इंटरनेशनल एजेंसीज या कहीं की भी जो आपके स्टैट्स हैं उनके कुछ रिपोर्ट्स हैं उनको आप अपने आंसर में डाल सकते हैं। डायग्राम फ्लो चार्ट का मेथड यूज कर सकते हैं किसी चीज को एक्सप्लेन करने में, उससे आपका टाइम बचेगा। और उसके साथ ही आई थिंक सिंस ये 48 पेज का बुकलेट होता है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उस 48 पेज के बुकलेट को भर दे 3 घंटे में। सो पेज भरने का एटीट्यूड थोड़ा कम रख करके आंसर को बढ़िया से स्ट्रक्चराइज करिएगा। अलोंग विद दैट आपको चूंकि एमसीक्यू है तो थोड़ा डिटेल्ड वे में पढ़ना पड़ेगा, और आई होप आप लोगों ने किया ही होगा। तो अपना लास्ट मोमेंट का जो आपका 28 से एग्जाम है, यू हैव 5 डेज लेफ्ट, सो इसमें आप लोग थोड़ा रिवीजन पे ज्यादा फोकस करिए। जो आपको मेमोराइज करने वाली चीजें हैं उनको आप थोड़ा थरली जाइए सो दैट वो 40 मार्क्स कंप्लीटली आपके हो जाएं, क्योंकि उसमें कट करने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आउट ऑफ 160 टीचर अगर आपने बहुत अच्छा क्वालिटी लिखा तो 100 भी दे सकता है, 100 प्लस भी दे सकता है, और स्कोर्स आते हैं इवन आई गॉट 160 प्लस और ऐसे करके। सो इट्स इजी, इट्स सिंपल। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में हिस्ट्री में जैसे कि मेरा एक स्ट्रैटेजी होता था कि हर एक में से जब 4 क्वेश्चन लिखने होते थे तो एक क्वेश्चन आई वुड हैव सिलेक्टेड झारखंड स्पेसिफिक, क्योंकि आई नो कि ये स्टेट का एग्जाम है, सो दे वुड एक्सपेक्ट कि मैं झारखंड के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं। तो झारखंड का चाहे हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे कुछ भी हो, मिनिमम एक क्वेश्चन आप झारखंड का लिखिए ही लिखिए, क्योंकि इंडिया का तो सब कोई लिखता ही है। इसमें भी अगर आप झारखंड के स्पेसिफिक कुछ एलिमेंट डाल सकते हैं, कुछ केस स्टडी डाल सकते हैं, तो वो भी आप डालने का कोशिश करें, स्पेशली ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आप कोट कर सकते हैं झारखंड के बारे में। आप कोई अगर इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आप झारखंड के स्टेटिस्टिक्स को कोट कर सकते हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनके आप झारखंड की वेबसाइट पे देख लीजिए, आपको वो मिल जाएंगे, आपके मैगजीन्स में वो सारे कुछ मेंशन होंगे। सेकंड में आपका कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन का सेगमेंट बहुत क्लियर है। जस्ट स्टिक टू द सिलेबस, जो भी दिया हुआ है बस उसको आप पढ़ लीजिए, एंड उसमें से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, कोई बहुत ज्यादा ट्विस्ट करके नहीं है। लक्ष्मीकांत वुड आल्सो सफाइस। पबैट के लिए भी आपको बहुत ज्यादा वेंचर करने की जरूरत नहीं है। पबैट का जो एमसीक्यू है वो थोड़ा सा डाइसी होता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सटेंसिव रीडिंग करने की जरूरत पड़ेगी, बट आई होप कि वो अभी तक आप लोगों ने कर लिया होगा। एंड जो इसके क्वेश्चंस होते हैं वो जनरलाइज्ड क्वेश्चन होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, तो अगर आपने सिविल्स पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर किया होगा तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू आंसर, बट आंसर इट एग्जॉस्टिवली। और एक और चीज जो मैंने की थी वो थी कि जैसे कुछ क्वेश्चन था जिसमें पबैट का ही था, एक पिछले साल का आप देखेंगे, एक में आरटीआई और फाइनेंस कमीशन इनके बारे में पूछा गया था, तो मैंने सेलेक्टिवली इसको चूज किया था, अज्यूमिंग द फैक्ट कि एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का है, तो ये आरटीआई का क्वेश्चन अकेले 20 नंबर का होगा एंड फाइनेंस कमीशन का अकेले 20 नंबर का। सो जब बाइफर्केशन होता है तो इसमें आपको स्कोर बढ़ाने के ज्यादा चांस मिलते हैं। उसके अलावा आप अपने क्वेश्चन सिलेक्शन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जिस क्वेश्चन में आपके पास कंटेंट ज्यादा है प्लीज उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट करिएगा जहां पर आप एग्जॉस्टिवली लिख सकते हैं। एंड लास्ट जो हमारा पेपर है दैट बिलोंग्स टू साइंस एंड इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एस्पेक्ट में, उसमें साइंस पर्टिकुलर पार्ट में आप एनसीईआरटी पे फोकस करिए। एनसीईआरटी में सब कुछ मेंशन है, एंड दैट टू 10th तक की एनसीईआरटी काफी है।
लिखने के लिए। उसमें चूंकि 500-600 वर्ड लिमिट है, तो उसमें स्पेशली आप डायग्राम का यूज करें और एनसीईआरटी को रेफर करें या फिर लूसेंट को भी रेफर कर सकते हैं। उसमें भी कई जगह बड़े क्रिस्प और कंसाइज वे में दिया हुआ है। 500-600 आप उसको इलेबोरेट करके आराम से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेंडल का समथिंग था, एंड साउंड वाला जो चैप्टर है उससे एक क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था जो कि एनसीईआरटी में बहुत ही डिटेल्ड वे में है। तो एक एक दो दो पेज के आप नोट्स बना लीजिए, हर चैप्टर स्पेसिफिक या हर जो सिलेबस स्पेसिफिक है, और बस उसी को आप एक बार ओवरव्यू की तरह से रीड कर लीजिए और उसी को बस आपको कॉपी कर देना है वहां पे जाकर के। एंड इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज में करंट अफेयर की बुकलेट्स जो है वो आप रेफर करते ही हैं, उसको कोट करिए। बेसिक्स जो हम इन्वायरमेंट का पढ़ते हैं, जैसे कि हमने शंकर आईएएस से पढ़ा था और कुछ कुछ आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, डेली न्यूज़पेपर में जो आप देख रहे हैं, मैगजीन्स में देख रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आई थिंक उससे हो जाएगा। साइंस का पोर्शन जो है लास्ट जो आपका पेपर है वो सबसे ज्यादा स्कोर मैक्सिमाइज करने का पेपर है। लोगों को लगता है कि इकोनॉमिक्स में स्कोर मैक्सिमाइज नहीं होता है, बट इश्यूज भी आते हैं कुछ लोगों को इकोनॉमिक्स हैंडल करने में। लेकिन अगर आप थोड़े डिटेल्ड वे में इकोनॉमिक्स के जो बेसिक्स वो पूछते हैं पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, उसको आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे, या फिर जो भी आपके क्लास नोट्स आपको मिले हैं, बुकलेट्स जो हैं आपकी, उनका आप एक समरी बना लीजिए सो दैट आपको लास्ट में रिवाइज करने में आसान हो और वही आपको जाकर के वहां पे प्रोजेक्ट कर देना है। तो बस फोकस इसी पे रखना है कि आप अपने टाइम को जो 40 मिनट्स का जो टाइम है उसको आप अडेयर करें इन शुरू के पेपर्स में, 3 पेपर में, और लास्ट पेपर में चूंकि आपको 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं 32 मार्क्स ईच, तो उसमें भी आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर लें अच्छी तरीके से कि आप कितना टाइम देना चाहते हैं, 30 मिनट्स टू ईच क्वेश्चन या 35 मिनट्स, इस तरीके से करके। बट एमसीक्यू में इतना डिटेल में पढ़ें कि 40 मार्क्स आपके अपने हो जाए इस तरीके से। सो आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सो ज्यादा टाइम मत वेस्ट करिए एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग, जितना ज्यादा से ज्यादा रिविजन हो सकता है आपका। एंड आई थिंक इतने रिविजन के बाद आप बहुत ही इजीली क्वेश्चन पेपर हैंडल कर पाएंगे क्योंकि बहुत डाइसी नहीं होता है क्वेश्चन। So I think that's all I would want to say without wasting much time. Any questions? मैम आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग, आप काइंडली अपने बच्चों को थोड़ा सा शेयर करें कि आप ये स्ट्रेस को कैसे हैंडल किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस एग्जामिनेशन का स्ट्रेस को आप कैसे हैंडल किए? देखिए मेंस में स्ट्रेस आउट होना नेचुरल है, तो उसमें आपको लेजर लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने 1 आध घंटे स्टडी किया, उसके बाद 10-15 मिनट्स का आप लेजर ले लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए। किसी को अगर खेलने का कुछ शौक है तो आप आधे घंटे कुछ खेल लीजिए, आपका दिमाग फ्रेशन अप हो जाएगा। एंड इस एग्जाम में स्ट्रेस पहले भी आता है और बीच में भी आता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली एक दिन 2-2 एग्जाम आपको लिखना होता है और बहुत ज्यादा लिखना होता है, तो आदमी का मोमेंटम भी थोड़ा कम हो जाता है। बट वही चीज है कि कंसिस्टेंसी, पेशेंस जो है आपका, वो आपको मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा लास्ट मोमेंट तक, वरना पता चला कि आपने शुरू बहुत अच्छे से किया बट आप उसको बहुत अच्छे से खत्म नहीं कर पाए। राइट। एंड मैम एज यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, आपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे और आपने एग्जाम्स दिए, बट मेरे स्टूडेंट्स अभी तक तो एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचे नहीं। काइंडली थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एग्जामिनेशन हॉल का? एग्जामिनेशन हॉल का ऐसे कुछ पैनिक मोमेंट है ही नहीं शेयर करने लायक। जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। कई लोग होते हैं डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपसे पूछेंगे कि इसका क्या है, उसका क्या है, ये चीज मैंने देखा है, हुआ भी है, लोगों ने किया है। बट आई थिंक कि मेरा सोल फोकस मेरे पेपर पे होना चाहिए। आई एम नॉट हियर टू हेल्प समबडी एल्स, आई एम हियर टू हेल्प माई सेल्फ, बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं खुद सेलेक्ट होकर के सामने चली जाऊं। तो मैं यहाँ पे जनहित करने के लिए नहीं हूँ, मैं अपना पेपर लिखने के लिए हूँ और खुद क्वालिफाई करने के लिए हूँ। तो मेरा सोल ऑब्जेक्टिव मुझे अपने पेपर पे ही फोकस करना है एंड थोड़ा सा एमसीक्यू हैंडल करने के प्रति थोड़ा ऑप्शंस को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। और कई बार ऐसा लगता है कि
शायद ये चीज मुझे नहीं आ रही है, बट एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी बहुत हेल्प करता है, बिकॉज इन लोगों ने पीटी में किया है, सो ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है या बहुत नई चीज नहीं है। राइट, कभी कभी मैम ऐसा होता है कि क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ते हैं तो इजी लगता है, जब हमने राइट अप शुरू करते हैं तो फ्लो भी अच्छा आता है, बट इन मिड ऑफ कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं एंड वी गेट कंफ्यूज्ड, और बिकॉज ऑफ द पैनिक और एनवायरमेंटल अप्रोच हम लोग याद ही नहीं कर पाते। तो टाइम को कैसे उस समय मैनेज करें या क्या करना चाहिए? देखिए, क्वेश्चन लिखने के पहले मैंने पहले भी बताया कि 40 मिनट का मैंने टाइम लिया। मैंने अपनी घड़ी में सेट कर दिया कि मुझे 40 मिनट्स में खत्म कर देना है। 40 मिनट्स प्लस माइनस 1-2 मिनट हो सकता है, ठीक है? तो राइट, पहले जो टाइम मेरा 20 मिनट का बच रहा है, एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद मैं 5 मिनट इन्वेस्ट करूंगी ये सेलेक्ट करने में कि मुझे कौन से क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है? राइट, नाउ जब मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं उस आंसर का एक स्ट्रक्चर बनाऊंगी। मैं तो यही करती थी, क्वेश्चन जो अपना आंसर बुकलेट होता है उसके पीछे मैं एक स्ट्रक्चर बना लेती थी कि ओवरऑल मुझे क्या क्या लिखना है इसमें, सो दैट मैं इजिली रिकॉल कर पाऊं और उसको सामने अच्छे तरीके से लिख सकूं। तो पूरा लिखने के बाद, जैसे हम लोग ऐसे कैसे लिखते हैं कि आप पहले सोच लेते हैं कि आपको क्या क्या इंक्लूड करना है उसमें, उसके बाद उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो उसी तरीके से आपको एक ब्रीफ में, आपको एक गाइडलाइन, एक स्केच तरीके से तैयार कर लेना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या लिखना है, अच्छे से रिकॉल कर लीजिए। बीच में कई चीजें आती हैं, हमको याद आती है कि अच्छा ये भी मेंशन करना है, तो आप वो भी मेंशन कर दीजिए। इनफ टाइम रहता है, बट बहुत ज्यादा टाइम को क्रॉस करके कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स एक एक घंटा एक क्वेश्चन को दे देते हैं। तो ऑब्वियसली वेरी ट्रू। होता है इसमें ये है कि आपका पहला क्वेश्चन तो बहुत अच्छा लिखा जाएगा, आप काफी इलाबोरेटली लिख लें, लेकिन बाद वाले क्वेश्चन हो भी सकता है कि आपको काफी अच्छी तरीके से आते होंगे, बट उनका क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो इसीलिए टाइम को बराबर बांटना बहुत जरूरी है, सो दैट यू नो एवरीथिंग अच्छा लगे टीचर को, ऐसा नहीं लगे कि ये हड़बड़ी में लिख दिया बस। लास्ट में थोड़ी हड़बड़ी हो जाती है, ऑब्वियस सा बात है, बट वो सिर्फ लास्ट क्वेश्चन के कुछ सेगमेंट में होगी, हर क्वेश्चन में नहीं होगी। इसलिए प्रोपोर्शनेट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो एक बात और हमको याद आ रहा है कि क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग टाइप एंड शॉर्ट टाइप। तो आपकी एडवाइस क्या होगा, विच शुड बी द बेस्ट वन? नहीं, मेरे टाइम में आई थिंक इट वाज जस्ट लॉन्ग आंसर टाइप, देयर इज नो शॉर्ट आंसर टाइप इन दिस। यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू है और लॉन्ग आंसर डिस्क्रिप्टिव स्टाइल है। तो शॉर्ट आंसर का तो यहाँ पर है ही नहीं कुछ क्वेश्चन। राइट, एंड ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, ऑब्जेक्टिव इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें आपके नंबर कोई काट ही नहीं सकता, उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। 20 एमसीक्यू है, 2 नंबर ईच। तो उसमें अगर आप सही एमसीक्यू को टिक कर रहे हैं और अज्यूम करें कि 20 के 20 आपके सही हो गए, तो 40 नंबर तो वैसे ही आपके हो गए। तो 40, 200 का अगर हमारा पेपर है, उसमें से 40 नंबर आपको ऐसे ही मिल गए, तो आपको फाइट करना है उस 160 नंबर में, ठीक है? तो माय स्ट्रैटेजी इज कि हमको कितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर इस 160 में मिल सके। राइट, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने एमसीक्यू पे फोकस नहीं किया और आपको सिर्फ 160 ऐसे स्टाइल में लिखना है, तो ये चूंकि सब्जेक्टिव नेचर होता है, जो हम लॉन्ग आंसर टाइप लिखते हैं, तो वो एग्जामिनेशन का पेपर आपका जो चेक कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर ही इज सेटिस्फाइड कि आप क्या लिखे हैं या नहीं। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने बहुत अच्छा लिखा होगा, बट ही फील्स कि नहीं, इसमें कमी है, तो आपको नंबर कम मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप एमसीक्यू अच्छे से कर देंगे तो मिनिमम 40 तो आपके बन ही रहे हैं, बाकी आपको 160 में फाइट करना है। तो वो आप अच्छा लिखिएगा तो ऑब्वियसली कोई आपको अच्छा देगा ही। मैम, जेपीएससी मेंस या कोई भी मेंस एग्जामिनेशन को लेना एक चैलेंज होता है। यस, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंज आपको लगता है, किस तरह का चैलेंज हो है, या हाउ टू हैंडल दिस चैलेंज? चैलेंज इज जस्ट टू मेंटेन अपना पेशेंस और कंसिस्टेंसी को, और आपका जो परसिवियरेंस है वो आपका मेंटेन होना चाहिए। मतलब ये जो 3 दिन है, ये आपका तीनों दिन थ्रू आउट सेम एनर्जी आपका होना चाहिए, क्योंकि आपको मेंस का एग्जाम लिखना है और टाइम टेकिंग है। आप मॉर्निंग शिफ्ट में भी 3 घंटे लिखेंगे, इवनिंग शिफ्ट में भी 3 घंटे लिखेंगे, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। लास्ट पेपर देते देते मतलब पीपल आर लाइक कि नाउ आई कैन नॉट राइट, मतलब ऐसा हुआ भी है, मैंने देखा है एग्जामिनेशन हॉल में लोग छोड़ करके चले जाते हैं।
बट Right. इट्स नॉट अ गुड एटीट्यूड कि Right. आप मेंस अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड देन हाफ हार्टेडली आप कह रहे हैं कि हमसे नहीं हो रहा, आप लिखा नहीं जा रहा। तो वो पेशेंस को मेंटेन रखना है। और मेरा टारगेट है कि टू बी इन द लिस्ट। मेरा टारगेट ये नहीं है कि मुझे सिर्फ इंटरव्यू देना है, मेरा टारगेट है कि रैंक लेना, और वो भी रैंक लेना जो कि मेरा प्रेफर्ड चॉइस है। ये मेरा Right. टारगेट है। तो उस ऑब्जेक्टिव को दिमाग में अगर आप सेट कर लेंगे तो आई डाउट कि शायद ही कोई आदमी डेविएट हो पाएगा। कोई न्यूज़पेपर प्रिपेयर नहीं किया था, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलती हूँ। मेरे टाइम पे एक बुक थी क्राउन पब्लिकेशन की, सिर्फ वो इंग्लिश में थी। चूंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मुझे इश्यूज भी हुए थे रिसोर्सेज के, मुझे नहीं मिलते थे। एंड हिंदी को ट्रांसलेट करने में मेरा दुगना तिगुना टाइम चला जाता था। तो मैंने सिर्फ एक बुक को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया था। उसके अलावा मैंने थोड़ा एग्जॉस्टिवली इकोनॉमिक सर्वे जो झारखंड का था वो पढ़ा था। तो मुझे एक ओवरऑल आइडिया था झारखंड के बारे में कि अगर झारखंड स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन आएगा तो मुझे कैसे डील करना है। एंड जनरल स्टडीज के लिए आई वाज सिविल प्रिपेयर्ड। सो मुझे उसमें कोई इशू नहीं था। लेकिन झारखंड के लिए मैंने एक ही या मैक्सिमम 2 बुक रेफर की होंगी, और बस मैंने उसी को रेफर किया। मैं ये नहीं कि मैंने 10 किताबें खाली पढ़ती ही गई। मतलब उससे रिटेंशन आपका नहीं होता। यू जस्ट कीप ऑन रीडिंग रीडिंग बट यू डोंट रिमेम्बर। तो देर इज नो पॉइंट मल्टीपल रीडिंग का। तो इसलिए आप एक या दो जो भी रिसोर्सेज आप रेफर कर रहे हैं, अगर आप किसी एकेडमी के स्टडी मटेरियल को रेफर कर रहे हैं तो उसके अलावा आप एक जो बुक, आप कोई बेस बुक है आप रेफर कर रहे हैं, तो बस वही तो सफिशिएंट है। बहुत ज्यादा वेंचर करने से आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी से कर सकते हैं, एमसीक्यू हैंडल कर सकते हैं, एंड जो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना हो वो भी आप लिख सकते हैं। इकोनॉमिक्स अगर मैंने इसलिए पढ़ा था क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स में के क्वेश्चन लिखने में, स्टैटिस्टिक्स लिखने में थोड़ा हेल्प होता था, और ज्योग्राफी में भी हेल्प होता था उसमें। एंड अदर देन दैट झारखंड की वेबसाइट में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। आप क्या यूज करना चाहते हैं, दैट इज, आप किस चीज को किस तरीके से यूज करेंगे वो आपका प्रेरोगेटिव है। तो वो आपका चॉइस होना चाहिए कि मैंने ये पढ़ा है, मुझे यहाँ ये चीज यूज करना चाहिए। इंग्लिश के कितने रिसोर्सेज स्टडी मटेरियल है और खोटा के कितने स्टडी मटेरियल है, आप एक बार उसको फ्लिप कर लीजिए, सिलेबस देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए कि आपको कहाँ पर थोड़ा लिखना ज्यादा कन्वीनियंट होगा। तो वो आपका चॉइस है। मतलब मेरे से अगर पूछिएगा तो मैंने तो खोरठा के बारे में कुछ भी नहीं सुना है, तो मैं तो ऑब्वियसली उसको अटेम्प्ट नहीं करूंगी। हम इंग्लिश मेरा बेस रहा है, भले ही मुझे लिटरेचर सेगमेंट में नहीं आता था, पर फिर भी पढ़ के मैंने कर लिया उस चीज को, क्योंकि मैं यहाँ की रीजनल लैंग्वेज मैंने कभी पढ़ा नहीं है। और इंग्लिश कुछ भी कितना भी हो, आई नो एंड आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़े रिसोर्सेज लॉस्ट थे। यहाँ पर अगर रिसोर्सेज है और आपको आइडिया है उस लैंग्वेज का तो आप ले लीजिए, मतलब दैट्स योर चॉइस। आप रिसोर्सेज देखिए कितना है, स्टडी मटेरियल दोनों का देखिए, कंपेयर करिए, आप एनालाइज करिए पिछले क्वेश्चन पेपर देख करके कि आपको कहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि रिसोर्सेज एनफ है और मैं इतने से सफिशिएंटली इस क्वेश्चन पेपर को डील कर लूंगी। आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखिए, इस बार जो क्वेश्चन आएगा उसको देखिए, एंड स्टडी मटेरियल को देखिए। इन तीनों को कंबाइन करके आप खुद ही कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए। मैम आपसे मेरा यही क्वेश्चन है कि इसमें जो आंसर राइटिंग करते हैं उस टाइम अंडरलाइन ये और कोटेशन ये वगैरह का वहाँ अलाउ है कि नहीं है मैम? सब अलाउड है, और अंडरलाइन मैंने भी किया है और हमेशा किया है। खासकर वो चीजें जो मुझे लगता था कि मैं चाहती हूँ कि एग्जामिनर उस पर फोकस करे। आप खुद ही सोचिए कि अगर आप एग्जामिनर हैं, आपको इतने सारे आंसर शीट चेक करने हैं, तो पॉसिबल नहीं है किसी भी आदमी के लिए कि लाइन बाय लाइन हर एक चीज पढ़े। तो एग्जामिनर के कन्वीनियंस के लिए और एक अच्छा प्रोजेक्ट करने के लिए आपको अंडरलाइन करना चाहिए। जो ये नहीं है कि पूरे क्वेश्चन को ही अंडरलाइन कर लीजिए, सिर्फ उनके एग्जामिनर अगर देखेंगे तो मुझे मार्क्स इसमें ज्यादा मिलेंगे। कोई नाम हो गया, कोई ट्रीटी हो गया, ईयर हो गया, या कोई कोटेशन की जिससे आप बात कर रहे हैं उस तरीके से हो गया, आप उसको फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करिए, डायग्राम में रिप्रेजेंट करिए, आप वैसे कर सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि कोई मना कर रहा है या कुछ। मैम इंट्रोडक्शन का लेंथ जो है, इंट्रोडक्शन छोटा होना चाहिए, ये नहीं कि पूरा 1 पेज इंट्रोडक्शन ही हम दे रहे हैं।
मैक्सिमम एक पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और उसके बाद आप पूरा बॉडी लिखिए, जो भी आपका आंसर का रिक्वायरमेंट है, जो आंसर पूछ रहा है उसको लिखने में आप कई बार सब हेडिंग्स दे सकते हैं छोटे छोटे, कि जहां पर एग्जामिनर को अंडरस्टैंड करने में इजी हो कि इस पैराग्राफ में आपने क्या लिखा है। एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो आंसर राइटिंग है उसमें अगर हम लोग जैसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखते हैं या कुछ स्टैटिस्टिक लिखते हैं, जैसे कुछ इकोनॉमिक सर्वे का लिख रहे हैं या कुछ बजट का लिख रहे हैं, तो उस पे कितना मतलब उसको कितना लेंथ करना चाहिए, और साथ में जो इंफॉर्मेटिव डिस्क्रिप्शन है उसके साथ-साथ जो खुद से जो हम लोग आस-पास देखते हैं या खुद से जो एनालाइज़ करके लिखते हैं, उसका कितना कंटेंट लिख सकते हैं? क्योंकि 40 मार्क्स। ये चीज जो आप बोल रही हैं ये क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के ऊपर है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका किसी भी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, मैं एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ, या पॉवर्टी को लेकर के आया, ठीक है, तो आपने पहले कोट किया किसी रिपोर्ट को, ठीक है, उस रिपोर्ट के अनुसार इस ईयर में ये जो रिपोर्ट आया था, इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये रिपोर्ट आया था, उसमें पॉवर्टी इतना परसेंटेज है, ठीक है। आपने एक लाइन लिख दिया, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। उसी तरीके से आप झारखंड के पर्सपेक्टिव को भी, आप जैसे झारखंड का एक एज पर झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे, द पॉवर्टी स्टैटिस्टिक्स फॉर द स्टेट इज इतना, ठीक है, उसके बाद आप उसके फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट इंफॉर्मेटिव आप 40 नंबर में खाली इंफॉर्मेटिव नहीं लिख सकते, है ना, आपको उसको एनालाइज करके लिखना पड़ेगा। और आप देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मतलब वो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी पूछ रहा है या फिर व्हाट इज पॉवर्टी ये पूछ रहा है। अगर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी पूछेगा तो ऑब्वियसली पहले हम डिस्क्राइब करेंगे कि पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी कितना है इंडिया लेवल पे, पॉवर्टी स्टेट लेवल पे कितना है, एंड उसके बाद मेरा पॉइंटर आएगा कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। एंड लास्ट सेगमेंट में आएगा वे फॉरवर्ड, मतलब सजेस्टिव अप्रोचेस क्या क्या है, क्या क्या होना चाहिए। और उसके बाद भी आप उसको और एग्जॉस्ट करना चाहेंगे, इलैबोरेट करना चाहेंगे एग्जॉस्टिवली, तो उसमें आप लिखिएगा कि रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऐसे हाईलाइट कर दीजिए, और उसके बाद आप जॉट डाउन करिए कि सरकार के द्वारा अभी क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ठीक है। आप स्टेट स्पेसिफिक भी जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल झारखंड स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स लिख सकते हैं, एंड इंडिया स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप उसको, मतलब आप समझिए कि आई हैव टू सेल अ प्रोडक्ट, मुझे कुछ एग्जामिनर को कुछ बेचना है, कुछ आंसर, तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि एक मिक्स होना चाहिए। ये भी नहीं कि सिर्फ ऐसे की तरह लिखे ही जा रहे हैं। ऐसे का एक पैटर्न है, क्योंकि 40 नंबर कोई बहुत सिंपल आंसर राइटिंग नहीं होता है जो हम कॉलेज में लिखते हैं जिस तरीके से, आप ऐसे इलैबोरेटिव स्टाइल में लिखते हैं, लेकिन उसमें कंटेंट हर तरह का होना चाहिए, ठीक है। मैम ये जेपीएससी मेंस में डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स कितना इंपॉर्टेंस रखता है, ये मैं पूछना चाहता था। क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में भी जरूरी है कि फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स शो करें? जरूरी कुछ भी नहीं है। डायग्राम और फ्लो चार्ट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम अपना टाइम सेव कर लेते हैं कई बार कुछ भी चीज को एक्सप्लेन करने में, और आपका वो एक सफिशिएंट स्पेस ऑक्यूपाई भी कर लेता है। जब हमारे पास टाइम नहीं होता है या कुछ चीज, कई बार हम अपने आंसर को यूनिक बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप डायग्राम या फ्लो चार्ट को यूज कर सकते हैं। बट मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको करना ही है, इट्स जस्ट अ चॉइस। फॉर एग्जाम्पल मैं लास्ट में एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, मेरे पास 20 मिनट बचा हुआ है, ठीक है, और वो भी 40 नंबर का क्वेश्चन है, एंड आई नो कि मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है लिखने के लिए, बट मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, तो मैं फ्लो चार्ट के थ्रू या एरो या डायग्राम के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, मेरा टाइम भी बच जाएगा, मैंने अपना जो एक्सप्लेन करना था वो भी लिख दिया उसमें, एंड एग्जामिनर ने उसको इजीली एक्सेस भी कर लिया, तो दोनों ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। बट जरूरी कुछ नहीं है, वो आपके टाइम और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लिखना चाहते हैं। मैम ये पूछना चाह रहा था मैं कि जैसे इसमें क्वेश्चन पहले 5वां नंबर क्वेश्चन लिखने के बाद क्या दूसरा नंबर क्वेश्चन जैसे लिख सकते हैं? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके बाद ये आपको जो सही लगता है, जिस तरीके से आपको लगता है आप लिखिए, बस क्वेश्चन का नंबर दे दीजिएगा और कुछ नहीं। आप चाहें पार्ट बी पहले लिखना, आप उसको भी लिख सकते हैं, आप हेडिंग डाल दीजिए पार्ट बी ऐसे करके, उसके बाद पार्ट 1, और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सीरीज में लिखना है। हमको पूछना था कि जो हम लोग राइटिंग करेंगे उसमें
बुलेट पॉइंट में लिखना अच्छा होगा या फिर कुछ और में? समय कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बुलेट में कन्वीनियंट है, बुलेट में 40 नंबर में हर कुछ बुलेट में नहीं लिखा जा सकता है ना। कुछ चीजों को ही आप बुलेट में लिख सकते हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है। अगर हम पॉइंटर्स में लिखेंगे तो भी चलेगा, तो आप वो यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बुलेट में ही लिखना है या फिर ऐसे टाइप से ही लिखना है। मतलब बुलेट हम लोग कहीं कहीं पे यूज करते हैं, बट पूरा आंसर ही बुलेट में लिखना मतलब ये थोड़ी बेवकूफी है। ये पूरा नहीं लिखेंगे मतलब हाँ, थोड़ा। तो आपको कहीं कहीं पे अगर कुछ यूनिक चीज लिखना है कि हाँ इसके कॉजेज आपको पता है 4 कॉजेज हैं, ठीक है, तो आप उसको 4 में लिख लीजिए। या फिर आप बुलेट पैटर्न में ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर जैसे सिर्फ कॉजेज पूछा गया है और आपको उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो आप उसमें डाल दीजिए कि कॉज 1 बुलेट 1 और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करिए, फिर बुलेट 2 फिर एक्सप्लेन करिए। उस तरीके से कर सकते हैं। मैम आई वांट टू आस्क यू दैट कि अगर मैं आंसर जब लिखूं तो उसमें क्या-क्या इनपुट जैसे करना होगा? मान जैसे कि अगर इन्फ्लेशन को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें क्या काउजेज ऑफ इन्फ्लेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ये सब लिखना होगा या फिर सिर्फ इन्फ्लेशन ही लिखना? कि अगर इन्फ्लेशन के बारे में पूछा गया है तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में पूछ रहा है तो आप इंडिया का इन्फ्लेशन बताइए क्या है, इंडिया में कितना चल रहा है। अगर झारखंड स्पेसिफिक स्टेटिस्टिक्स है उसके बारे में बताइए क्या है। अगर फिर उसके बाद आप हेडिंग डालिए कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। अब एक कॉज को 40 मार्क्स का है, एक्सप्लेन करिए। जितने मान लीजिए आप 5-6 कॉजेज डाल रहे हैं, एक्सप्लेन करिए और उसके साथ एग्जाम्पल भी कोट करिए, ठीक है। और मैम जब उसका कंट्रोल कैसे किया जाता है वो भी लिखना जरूरी होगा? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं पूछेगा और 40 नंबर में ये नहीं सिर्फ एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कॉज बता के छोड़ दें। मैंने शुरू में यही चीज बोला कि आपका आंसर जो होना चाहिए वो 3 पार्ट में बटा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो आप जिस तरह से पूछ रहे हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, तो आपका इंट्रो में होना चाहिए इन्फ्लेशन क्या है, झारखंड में कितना है, इंडिया पर्सपेक्टिव में कितना है। बॉडी में होना चाहिए आपके कॉज जिसको आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, एंड लास्ट में होना चाहिए व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू इट, ठीक है, या वे फॉरवर्ड, इस तरीके से। मैम एक मॉडल आंसर जब वहाँ पे जो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उनके पास मॉडल आंसर कैसा होता है और हम उसको अपने आंसर के अकॉर्डिंग हम उस चीज को नंबर मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं? मॉडल आंसर, आपका आंसर का स्कोर मैक्सिमाइज तभी हो पाएगा जब जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसको एड्रेस करिएगा। जैसे आप बोल रहे हैं अभी इन्फ्लेशन के कॉज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर आप कॉज को 40 नंबर में एक्सप्लेन ना करके खाली टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें तो मैं आपको नंबर नहीं दूंगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो इसी तरीके से जो आपको पूछा गया है आप उसको डिटेल वे में एक्सप्लेन करें तो ही आपके स्कोर मैक्सिमाइज हो पाएंगे। आप उसके अलावा इर्द गिर्द कुछ भी करिएगा तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और मॉडल आंसर का भी स्ट्रक्चर इसी तरीके से होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम अभी 4 दिन बाद है तो अभी जैसे थोड़ा डिमोटिवेट या डाउनफॉल फील होना होता है तो इससे कैसे अपने आप को रख सकें स्ट्रॉन्ग फिर से अपने उसी तरह? ब्रेक लीजिए कुछ देर का, कुछ एनर्जाइज कर लीजिए, कुछ देख लीजिए। कई बार होता है कि आदमी मोनोटोनस रीडिंग हो जाता है, पढ़ते पढ़ते आदमी बोर हो जाता है, तो आपको अगर उसी टाइम को यूज करिए, आप यूट्यूब से कुछ देख लीजिए। देखना इन सेंस की नॉट सम अदर वीडियो बट वॉच एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही कुछ अदर वीडियोस देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल टाइप कर दीजिए आपको अगर झारखंड का एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ जानना है तो उसे आप फ्रेशन अप हो लीजिए। मतलब डिमोटिवेट होने का यहाँ पे क्या है, 4 दिन बाद मेरा एग्जाम है, मैं डिमोटिवेट करके अपना टाइम वेस्ट करूंगी, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं करूंगी। सो ऐसा थॉट प्रोसेस ही दिमाग में नहीं लाना है। मेडिटेट कर लो या कुछ खेल लो, आई थिंक दैट वुड सफिस। और लास्ट टाइम का क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी? रिवीजन पूरा तो नहीं हो पाएगा लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैसे छाट के रिवीजन किया जा सके? देखिए इसमें रिवीजन 2 पर्सपेक्टिव से होता है, क्योंकि एमसीक्यू भी है तो आपको थोड़ा डिटेल रिवीजन भी करना होगा कि अगर एमसीक्यू में कुछ आए तो वो आप लिख सके, और अगर आंसर राइटिंग का है तो उसमें आपका कंटेंट रिवीजन होता है। तो आपने अगर नोट्स बनाए होंगे तो सिर्फ उसको रिवाइज करिए, वरना अगर आपने बुक में हाईलाइट करके रखा है तो उसको फ्लिप करते जाइए। दैट्स इट। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं
तो उसका स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए? मैंने अभी पूरे लेक्चर में यही चीज ये बोला तो कि बता आंसर राइटिंग का स्ट्रैटेजी, वेयर वर यू वर नॉट लिसनिंग, Yes, I was listening. डजंट लुक लाइक यू वर लिसनिंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो, ठीक है? तो उस सब्जेक्ट से लेके आप किस तरह से आप मतलब एज वही सब्जेक्ट से मतलब मेरा मतलब है कि वही सब्जेक्ट जब आप वो उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हो तो hand in hand you can just go for the answer writing practice, or should we delay for the कितना कंटेंट आपके पास जनरेट है आंसर लिखने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आंसर राइटिंग शुरू करना चाहिए या थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए। अगर मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन देखा और उस एक बेसिक बुक पढ़ने के साथ ही आई स्टार्ट राइटिंग माय आंसर, तो उसमें कुछ वेरिएशन या कुछ बहुत वैरायटी या वैल्यू एडिशन नहीं होगा। तो बेटर होता है कि थोड़ा अच्छे तरीके से आदमी डिटेल 2-3 लेवल पे पढ़ ले, उसके बाद आप आंसर राइटिंग करिए, so that एक पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर आपको मिले। So ma'am, thanks a lot. Yes. And really it was a very learning session. Thank you so much. So all the very best to all the person who are appearing. So please be serious and थोड़ा patience रखिए, and I think you'll be able to do it. It's not such a Herculean task. Right. Okay, thank you. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.